آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ AMC انتخابات کے لیے موصولہ 1870 امیدواری فارمز کی گئی آج جانچ۔ ہر بلاک میں چند ایک کو چھوڑ کر بقیہ نامینیشن پائے گئے درست۔ سیاسی جماعتوں کے اہل امیدوار لگ گئے مد مقابل آزاد امیدواروں کو رام کرنے کے کھیل میں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ٹکٹ نہ ملنے پر سبھی سیاسی جماعتوں کے مقامی قائدین پر ان کی ہی جماعت کے لوگ اٹھانے لگے ہیں انگلیاں۔ مشتعل خواہش مند افراد نے کیا پارٹی دفتر اور قائدین کی گاڑیوں کا گھیراؤ۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس کوٹیشور سنگھ نے کی تاریخی دولت آباد قلعے کی سیر۔ نہایت ہی خوبصورت اور ناقابل تسخیر قلعہ ہونے کا دیا انہوں نے تاثر اور کیا خوشی و مسرت کا اظہار۔ اور سال 2025 کے کھٹے اور میٹھے تجربات کو یاد کرتے ہوئے عوام نے کیا نئے سال 2026 کا استقبال۔ جم کر سجی مے نوشی اور رقص و موسیقی کی محفلیں، مگر نیا سال آتے ہی شراب پی کر گاڑی چلانے والوں پر شکنجہ کسنے پولیس ملازمین کو گزارنی پڑی سڑکوں پر سرد رات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ AMC انتخابات کے لیے تمام 29 بلاکس کے لیے موصولہ 1870 نامینیشن کی اسکروٹنی سبھی متعلقہ RO دفاتر میں کی گئی۔ نامینیشن فارمز کی اسکروٹنی کا کام جیسے ہی شروع ہوا، سبھی RO دفاتر پر متعلقہ بلاک کے خواہش مند امیدوار اپنے حامیوں اور دستاویزات کے ساتھ متعلقہ RO کے سامنے حاضر ہوئے۔ جب کوئی دوسرا امیدوار ان کے داخل کردہ امیدواری فارم میں درج شدہ معلومات سے متعلق اعتراض جتاتا، ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی، اور جب آبجیکشن رد کر دیا جاتا تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے۔ باوجود اس کے سبھی RO دفاتر میں کچھ نامینیشن رد کیے جانے کی اطلاع ہے، جس کے اعداد و شمار رات دیر گئے تک موصول ہوں گے۔ لہٰذا کتنے امیدواروں کے فارمز درست پائے گئے اور کتنوں کے فارمز رد کیے گئے، یہ تو رات دیر گئے ہی پتہ چلے گا، مگر جن امیدواروں کے نامینیشن درست قرار دیے گئے ہیں، اب وہ ایک نئے محاذ پر جڑ گئے ہیں اور وہ اپنے مقابل کو، اس کے علاوہ آزاد امیدواروں کو اپنے نامینیشن واپس لینے کے لیے راضی کرنے کی جد و جہد کرنے لگے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار اپنے مد مقابل کتنے آزاد کینڈیڈیٹس کو رام کر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور نامینیشن واپس لینے کے لیے مقررہ میعاد یعنی 3 جنوری تک کتنے لوگ انتخابی میدان سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اس جانب سب کی توجہ مرکوز ہے۔ تعلقہ سینگاؤں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 اہم عہدیداروں نے NCP اجیت پوار گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ لوک شاہی، مساوات اور ہمہ جہت ترقی کے نظریے سے متاثر ہو کر ہمت راٹھوڑ اور وجے ڈھوکلے نے یہ فیصلہ کیا۔ اس موقع پر ضلع پریشد کے سابق نائب صدر انیل پتنگے، نگر ادھیکش کیلاش دیشمکھ، سابق نگر ادھیکش راج کمار دیشمکھ سمیت NCP کے کئی عہدیداران و کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ MLA راجو نوگھارے نے نئے شامل ہونے والے عہدیداروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی سیاست کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہے گی۔ BJP سے NCP میں اس شمولیت کو سینگاؤں تعلقے کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ شیو سینا شندے گروپ سے آس لگائے بیٹھے افراد کا غصہ اس وقت آسمان پر پہنچ گیا جب ان کے نام پارٹی امیدواری فہرست میں نہیں آئے۔ رابطہ وزیر سنجے شرساٹ کی گاڑی کا گھیراؤ کرتے ہوئے اپنا احتجاج درج کروایا۔ ٹکٹ سے محروم شیو سینک آج شدید ناراض نظر آئے اور انہوں نے نگراں وزیر سنجے شرساٹ کے بنگلے کے باہر دھرنا دیا۔ ناراض کارکنان کا الزام ہے کہ پارٹی کے پرانے اور وفادار شیو سینکوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ نئے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس ناراضگی کے اظہار کے لیے کارکنان نے پارٹی قیادت تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد شیو سینا کے اندرونی اختلافات ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ انتخابات سے عین قبل پیدا ہونے والی یہ صورتحال پارٹی کے لیے تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ دریں اثنا رابطہ وزیر سنجے شرساٹ کی جانب سے اس معاملے پر اب تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ ٹکٹ تقسیم سے پیدا ہونے والی یہ ناراضگی آنے والے انتخابات پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ अरे कार्यकर्त्याला भेट होत नाही, काय कामाचं आहे? अरे आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला
तुम्ही येऊन भेटले पाहिजे. तुम्ही काही बोलत नाही, काही सांगत नाही, काय समजायचं हे का जाणून बुजून केलं काय? हे जाणून बुजून केलं वाटतं. ते येतील स्वतःच्या निवडणुकीच्या वेळेस येतील ना, जनतेच्या समोर स्वतःच्या निवडणुकीच्या आणि वेळेस कोणी येतील नाही ना. जातं, त्यांना मतदान स्वतःला करावं नाही. मतदानाची आवश्यकता वाटली म्हणून येतील ते. लोकसभेला मतदान केलं, विधानसभेला आता त्याला मतदान आवश्यकता केलं. नाही मतदानाची, त्याच्यामुळे ते झोपले आरामशीर. गेल्या 20 वर्षापासून शिवसेनेमध्ये काम करतो आहोत. उठावाच्या वेळेस आम्ही शिंदे साहेबांसोबत गेलो, शिरसाट साहेबांसोबत गेलो आम्ही. आणि आम्हाला असं वाटलं होतं की जेव्हा पक्षांचं मोठं काही सत्ता येईल, काही येईल, तर आमच्यासारख्या गरीब कार्यकर्त्याला स्थान मिळेल. पण त्यावेळेचे आम्हाला गद्दार गद्दार म्हणायचे असे त्र्यंबक तुपे हे आमच्या वार्डाचे नगरसेवक राहिलेले. आम्ही लोकसभेत आणि 20 विधानसभेत काम करत वर्षापासून असताना नगरसेवक राहिलेले आहेत ते. लोकसभेत आणि विधानसभेत आम्ही काम करत असताना त्यांनी आम्हाला तलवार काढायची भाषा केली. पण आमच्यासारखे काही निष्ठावंत मोजके कार्यकर्ते होते. आम्ही लढून साहेबांची आणि लोकसभेची सीट आणली हे सगळ्यांना माहित आहे. आणि आज जेव्हा सत्ता आली तर सत्तेच्या लालचेने त्र्यंबक तुपे सारखे लोक आमच्या पक्षात आले आणि आम्हाला उमेदवारी टाळली. म्हणजे कालपर्यंत काय म्हणतोय साहेब, युतीमध्ये आपण एससी मधून आपलं तिकीट सोडतोय आणि युती आपण तुटली तर आपल्याला मला स्थान मिळेल असं मला वाटलं होतं. युती तुटल्यानंतर जो उमेदवार आणला तो सुद्धा काही तोड मोलाचा नाही आणला. शिवसेना शिंदे ग्रुप से साझेदारी खत्म होते ही बीजेपी कायदीन ने 96 अफराद को बी फॉर्म दिए, जिसके सबब 50 साबिक कॉरपोरेटर्स की लॉटरी लग गई और उन्हें फिर से म्यूनिसिपल इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिल गया। महायुति में दरार के फौरन बाद बीजेपी ने जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए महज 3 घंटों के अंदर 96 उम्मीदवारों को बी फॉर्म जारी कर दिए। पार्टी की इस फहरिस्त में 50 साबिक कारपोरेटरों को दोबारा मौका दिया गया, जिनमें उद्धव सेना और दीगर जमातों से बीजेपी में शामिल होने वाले 13 साबिक नुमाइंदे भी शामिल हैं। वहीं पार्टी ने 46 नए चेहरों को टिकट दिया। ताहम ये भी हकीकत है कि 19 वार्ड्स में बीजेपी को उम्मीदवार दस्तयाब नहीं हो सके। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतार कर पार्टी ने इंतखाबी मैदान में बढ़तरी हासिल करने की कोशिश की है। वज़ीर महसूलात चंद्रशेखर बावनकुड़े की जानिब से 35 से 45 साल की उम्र के उम्मीदवारों को तरजीह देने के बयान के बरक्स जारी फहरिस्त में बड़ी तादाद में उम्र रसीदा उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 30 उम्मीदवार 50 से 70 साल की उम्र के हैं, जबकि 35 से 45 साल के करीब 40 और 25 से 35 साल के करीब 26 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। इसी वजह से सियासी हलकों में यह बहस जोर पकड़ रही है कि बीजेपी ने नौजवान क़यादत के बजाय तजुर्बे को फ़ौक़ियत दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ब्लॉक नंबर 14 से साबिक अपोजिशन लीडर फ़िरोज़ मोइनुद्दीन खान को एक बार फिर उम्मीदवारी दे दी है, जिस पर ब्लॉक के साकिनान ने जश्न मनाया और उनकी हिमायत में एक शानदार रैली निकाली। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो म्यूनसिपल आम इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक नंबर 14 के मुख्तलिफ रास्तों और चौराहों की है, जिससे ब्लॉक के साकिनान अपने उम्मीदवार फ़िरोज़ खान की इंतखाबी तशहीरी रैली में शामिल दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही ब्लॉक के साकिनान को इस बात की खबर मिली थी कि MIM ने फ़िरोज़ खान का नाम कन्फर्म कर दिया है, उन लोगों में खुशी व मसरत का माहौल है और वो फ़िरोज़ खान को मुबारकबाद देने जौक दर जौक उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे और उनकी गुलपोशी करते हुए न सिर्फ उन्हें उम्मीदवारी मिलने पर मुबारकबाद पेश की, बल्कि उन्हें ये तयक़ुन भी दिया कि वो AMC इंतखाबात में सबसे बड़ी लीड अपने हलक़े के उम्मीदवार यानी फ़िरोज़ खान को दिलवाएंगे। और फिर उसी दिन से उनकी इंतखाबी तशहीर शुरू कर दी और उनके हक़ में ब्लॉक का माहौल बनाते दिखाई दिए। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में MIM ने 17 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वाज़ेह हो कि शहर जालना में MIM ने शहरियान की बुनियादी ज़रूरियात को अपना अहम इंतखाबी एजेंडा बनाया है। ज़िला सदर शेख माजिद ने कहा कि इस इंतखाब में तारा सितारा को ज़बरदस्त टक्कर दी जाएगी और आवाम के मसाइल पर मबनी सियासत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इंतखाबी मुहिम के लिए MIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ पार्टी के अराकीन असम्बली और अराकीन पार्लियामेंट भी जालना शहर में इंतखाबी जलसों के लिए आएंगे। शेख माजिद ने शहरियान से अपील की कि वो शहर की हमजहत तरक्की के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बागडोर MIM के हाथों में दे। उनका कहना था कि MIM शहर की तरक्की के लिए ठोस रहनुमाई और मौसर क़यादत फराहम करेगी। जालना शहर महानगरपालिकेमध्ये MIM पक्ष 18 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे। माननीय इम्तियाज जलील साहेब यांच्या आदेशानुसार आम्ही सेक्युलर पक्षांसोबत युती करण्यासाठी तयार होतो, परंतु सेक्युलर पक्षांनी आमच्यासोबत युती करण्यासाठी नकार दिला। शेवटपर्यंत आम्ही प्रयत्न केले, परंतु काय आहे ते त्यांच्याच मनात आहे की त्यांनी MIM पक्षाला झटकून दिलेला आहे। आता MIM पक्ष हा स्वबळावर 18 जागांवर शहर महानगरपालिकेची निवडणूक लढवत आहे।
तुमची लढत कोणासंग राहणार आहे? आमची लढत तारा सितारा विरुद्ध राहणार आहे. तारा सितारा म्हणजे जे प्रस्थापित नेते या जालना शहरामध्ये 30 ते 35 वर्षापासून राज्य करत आहेत आणि लोकांना काहीही सुविधा न देता शहर नगर परिषदेचे जे भ्रष्टाचार त्यांनी केलेले आहे, भाजप आणि शिवसेना हे प्रमुख विरोधी पक्ष हे आमचे राहणार आहेत आणि त्यांना रोखण्यासाठीच आम्ही इथं मेहनत करणार आहोत, प्रयत्न करणार आहोत आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की जालना शहरातील जनता जनार्दन मायबाप MIM पक्षाला मतं देऊन भरघोस जास्तीत जास्त संख्येने आमचे नगरसेवक या न्याय मंदिरामध्ये पाठवल्याशिवाय राहणार नाही. मुद्दे या शहरामध्ये भरपूर आहेत. सर्वात मोठा मुद्दा जर तुम्ही या शहरामध्ये बघितला तर धुळीचा मुद्दा आहे, स्वच्छताचा मुद्दा आहे आणि पाण्याचा मुद्दा आहे. या दोन्ही नेत्यांनी, दोन्ही तारा सिताऱ्यांनी आम्हाला, आमच्या जनतेला हा विश्वास दिला होता की आम्ही तुम्हाला 1 दिवसाआड पाणी देणार, परंतु जालन्याला 15 दिवसाआड पाणी येतो, 20 दिवसाआड पाणी येतो. जर आपण बघितलं तर भाग्यनगर आणि प्रीतीसुधा नगर तिथं तुम्ही जा तर असं वाटतं की आपण आता दुबईला आलो का स्वित्झर्लंडमध्ये आलो. रोड, नाली, रस्ते, पाणी, पददिवे सगळे चालू आहेत. आणि जर तुम्ही गांधीनगर, वाल्मिकी नगर, साळी गल्ली, मोरंडी मोहल्ला, अफगाण मोहल्ला, दुखी नगर, नॅशनल नगर इथं जर तुम्ही गेलं तर तुम्हाला वाटणार की आम्ही जालन्यात नाही, एखाद्या कोणत्या आम्ही खेड्या गावामध्ये इथं आलेलो आहे. एवढी भकाल परिस्थिती या तारा सिताऱ्यांनी या शहराची केलेली आहे. याच्यासाठीच MIM पक्ष हा निवडणूक लढवणार आहेत आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे, जसे बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब सर्व समाजाचे प्रश्न संसदेत मांडतात, त्याच प्रकारे आम्ही सर्व समाजाला सोबत घेऊन MIM पक्ष हा ही निवडणूक लढवत आहे. दौलताबाद का तारीखी देवगिरी किला एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने किले का दौरा किया और किले की बनावट और शान व शौकत की तारीफ की। दौरे के दौरान उन्होंने महाकोट, अंबरकोट, सरस्वती कुआं, हाथी हौज, भारत माता मंदिर, कालकोट, चीनी महल, रंग महल, खंदक और अंधेरी भूल भुलैया जैसे तारीखी मकामात का मुआयना किया। किले की नाकाबिल तस्खीर बनावट, शानदार फन तामीर और तारीखी अहमियत ने उन्हें ख़ास तौर पर मुतासिर किया। उन्होंने किले को इंतहाई खूबसूरत, मजबूत और तारीखी अजमत का हामिल करार देते हुए तासुरात रजिस्टर में दर्ज किए। इस मौके पर सियाहती गाइड शेख जावेद और इलाकाई सियाहत दफ्तर के असिस्टेंट और तारीख़ के माहिर डॉक्टर शिवाजी गायकवाड़ ने किले की तफसीली मालूमात फराहम की। तारीख़ से खुसूसी दिलचस्पी के बाइस जस्टिस सिंह ने किले की मुख्तलिफ इमारतों का बारीकी से मुशाहिदा किया। इस मौके पर महकमे तामीरात आम्मा के सब इंजीनियर नीरज वेरवाड़कर, दौलताबाद पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर अयूब पठान, योगेश जाधव और बाबा साहब आढ़ा भी मौजूद। वजीर आला समृद्ध पंचायत राज अभियान के तहत ताल्लुका कन्नड़ के सारोला गांव में सफाई और शजरकारी की गई। सारोला गांव में हर हफ्ते एक दिन गांव की सफाई के लिए मखसूस किया गया है। 30 दिसंबर से ग्राम पंचायत और ग्राम मस्थों के इश्तराक से सुंदर मेरा गांव, साफ और सेहतमंद गांव के मकसद के तहत बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई गई। ये मुहिम शिव स्मारक से शुरू होकर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक, मजहबी मकामात, ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल, हेल्थ डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत दफ्तर और आखिर में वैकुंठ धाम शमशान भूमि तक मुकम्मल की गई। प्लास्टिक और थर्माकोल से पाक गांव बनाने के अज़्म के साथ श्रमदान किया गया और आखिर में 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले देसी दरख्तों की शजरकारी की गई। इस मुहिम में ग्राम पंचायत अहदेदारान, असातिज़ा, तलबा, आशा कारकुनान, सरकारी मुलाजिमीन और ख़वातीन समेत गांव के तमाम साकिनान ने शिरकत की। आज आम्ही संपूर्ण गावामध्ये ग्राम स्वच्छता अभियान राबवलेलं आहे। आमच्या गावातील 4 वस्ती शाळा, 1 जिल्हा परिषद शाळा, उपकेंद्र, 3 अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत कार्यालय तसेच संपूर्ण गावामध्ये आज आम्ही स्वच्छता मोहीम राबवली। गावातील शाळेतील मुलं आणि गावातील महिला तसेच नागरिक जवळपास 100-150 लोकांनी यात सहभाग घेतलेला होता। नाजरीन, इलेक्शन आते ही सोशल मीडिया भी एक्टिव हो जाता है और कई मज़ाहिया वीडियोस और ऑडियोज सामने आने लगते हैं। ऐसा ही एक ऑडियो गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए कि किस कमाल होशियारी से ऑडियो बनाने वाले ने टिकटों की तकसीम के दौरान पेश आने वाले वाक़यात को एक फ़र्ज़ी टेलीफोन कॉल की शक्ल में आवाम के सामने पेश किया। वालेकुम सलाम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ अल्लाह का करम है। कैसा चल रहा? अल्लाह का लाखों ने करोड़ एहसान है। हवा क्या हो रही हवा? हवा फिलहाल में तो क्या है, अभी चालू है, अच्छा चल रहा। अच्छा, नहीं हमको एक साहब ने नंबर दिए थे आपका। जी जी आपका काम हो जाएगा बोले इधर।
जी जी पहले इससे पहले दूसरा कॉल लगाया था, वहाँ काम नहीं जमा, जी। तो हमारे दोस्त थे, मैं हाँ 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 तो नाम नहीं लेना चाहता उनका मैं, जी उन्होंने जी नंबर दिए है आपका, बोले जी ये कर देंगे आपका काम। जी जी। क्या काम था? ज़्यादा कुछ नहीं था, 2 टिकट कंफर्म करना था बस। यार करा देंगे ना, कोई मसला नहीं ना, इंशाल्लाह। कहाँ की टिकट है? वार्ड क्रमांक 14 के। अरे ओ भाई, क्या बोल रहे तुम? ये टिकट कंफर्म करना थे। किसको बोल लगाया तुमने? ये दूसरी पार्टियों को बात करे उन्होंने, मगर कुछ अपनी बात रखी नहीं उन्होंने, अपना दबदबा बने वाला है। अरे भैया, अपने रेलवे टिकट का काम है, स्टेशन पे फ्लाइट टिकट का काम है। नहीं ना भैया, ये औरंगाबाद से टिकट मांग रहा मैं तुमको। गलत नंबर लगाए भैया, गलत नंबर लगा रहे हो तुम। अपना ये रेलवे टिकट का काम है ना भैया। क्या कौन सा टिकट मांग रहे हो तुम मेरे को? ये अभी नगर से ओके। भैया गलत नंबर लगा रहे हो ना तुम मेरे को मेरे पास तो नहीं रहते हो सब। आपके पास नहीं रहते? नहीं नहीं नहीं, किसने नंबर दिया आपको? वो हमारे दोस्त थे, उन्होंने दिए थे, बोले कंफर्म टिकट करके देते बोले। अरे भैया, अपना ट्रेन टिकट और फ्लाइट टिकट का काम है भैया अपना। ट्रेन के और फ्लाइट के टिकट का काम है क्या? हाँ, गलत नंबर लगाया आपने। मैं वही बोलूँ ना भाई, कौन सा टिकट कंफर्म करा रहे यार तुम। भाई मैं तुमको दो दिन से कॉल लगा रहा भाई यार, तुम्हारा कॉल लग रहा ही नहीं, और कॉल लगा तो कभी उठा रहे नहीं भाई, तुम मतलब बिजी होंगे अभी थोड़ा इलेक्शन की वजह से करके। नहीं नहीं नहीं, वो हमारे टिकट होगा, उसका सीजन चालू, उसमें काम में बिजी थे हम। मैं वही बोलूँ, कौन सा टिकट मांग रहे तुम ये? नहीं भाई, हमारे इलेक्शन के टिकट हो ना यार। नहीं 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 नहीं, गलत नंबर लगाए भैया आपने। चलो ठीक है, माफी चाहते भैया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। औरंगाबाद में कॉल लगाना है। हाँ। ठीक है। तालुका गंगापुर के नारायणपुर गांव को मजीद सरसब्ज और खूबसूरत बनाने की सिमत में एक अहम कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत और ग्रीन गोल्ड कंपनी के इश्तराक से सड़क किनारे बोगनवेल पौधे लगाए गए। तालुका गंगापुर के नारायणपुर ग्राम पंचायत और ग्रीन गोल्ड कंपनी के इश्तराक से गांव के दाखिली दरवाजे से पूरी हुदूद तक सड़क के किनारे बोगनवेल के पौधे लगाए गए। इस इक़दाम से न सिर्फ गांव की खूबसूरती में इजाफा हुआ है, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का भी पैगाम मिला है। शजरकारी का इफ्तिताह सरपंच नासिर पटेल के हाथों ग्राम पंचायत ऑफिसर स्वप्निल घरमोड़े की रहनुमाई में हुआ। इससे कबल नारियल, आम और इमली समेत दीगर दरख्त लगाए जा चुके हैं। इसी सिलसिले के अगले मरहले में रंग बिरंगे बोगनवेल के पौधे लगाए गए हैं, जो आने जाने वालों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। इस मौके पर नायब सरपंच मजीद पटेल, हाशिम पटेल, जुनेद पटेल, बासित पटेल, ज़ुबैर पटेल, जलील पटेल, गुलजार पटेल, ग्राम पंचायत मुलाजमीन मुख्तार शेख, हमीद शेख, अनीस शेख, नेज़, किरण जमधाड़े, अशोक जगधने, महादेव चांदगुड़े और बड़ी तादाद में गांव के साकिनान मौजूद थे। साल 2025 के खट्टे और मीठे तजुर्बात को याद करते हुए शहरियान ने नए साल 2026 का खैर मकदम किया और होटलों और दीगर मकामात पर 31 दिसंबर नाइट मनाई। कुछ के लिए 2025 ख्वाबों की ताबीर बना तो कुछ के लिए सीख और जिद्दोजहद का साल साबित हुआ। साल के आखिरी दिन शहरियान ने तल्ख यादों को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ आगे बढ़ने का अज़्म किया। मस्बत सोच के साथ औरंगाबाद के शहरियान ने 2025 को अलविदा कहकर 2026 के इस्तकबाल की तैयारी की। चौराहों पर जोश, घरों में उम्मीद और चेहरों पर नए अरमान छलकते नजर आए। पुराना डिलीट, अच्छा सेव, यही पैगाम हर सिमत गूंजता दिखाई दिया। अलविदा 2025, खुश आमदीद 2026। नई उम्मीदों, नए अज़्म और मस्बत सोच के साथ हम नए साल में कदम रख रहे हैं। MCN न्यूज़ की जानिब से तमाम नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद। जालना शहर पुलिस ने आदि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक खतरनाक मुलजिम को गिरफ्तार करके मरकजी जेल हरसूल भिजवा दिया। जालना शहर के आदि मुजरिम कुलदीप उर्फ जज्जा अंबादास जगधे जमुनानगर पर कदीम जालना पुलिस थाने में संगीन नोयत के कई मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट जालना की हिदायत पर उसके खिलाफ महाराष्ट्र इंसदादी कानून 1981 के दफ़ा 3(1) के तहत कार्रवाई की तजवीज़ तैयार की गई थी। ज़िला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक 26 दिसंबर 2025 को उसे 1 साल के लिए मरकज़ी जेल हरसूल में नज़रबंद करने का हुक्म दिया गया, मगर वो फ़रार हो गया था। 30 दिसंबर को खुफिया इत्तला पर पुलिस ने आनंद नगर इलाके में जाल बिछाकर उससे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को फौरी तौर पर मरकज़ी जेल मुंतकिल करने की कानूनी कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई पुलिस अफसरान की निगरानी में कदीम जालना पुलिस टीम ने कामयाबी से अंजाम दी।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एएमसी इंतखाबात के लिए मौसूला 1870 उम्मीदवारी फॉर्म्स की गई आज जांच। हर ब्लॉक में चंद एक को छोड़कर बकिया नॉमिनेशन पाए गए दुरुस्त। सियासी जमातों के अहल उम्मीदवार लग गए मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवारों को राम करने के खेल में। आगे आगे देखिए होता है क्या। टिकट न मिलने पर सभी सियासी जमातों के मकामी कायदीन पर उनकी ही जमात के लोग उठाने लगे हैं उंगलियां। मुश्तइल ख्वाहिशमंद अफराद ने किया पार्टी दफ्तर और कायदीन की गाड़ियों का घेराव। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने की तारीखी दौलताबाद किले की सैर। निहायत ही खूबसूरत और नाकाबिल तस्खीर किला होने का दिया उन्होंने तासुर और किया खुशी व मसरत का इजहार। और साल 2025 के खट्टे और मीठे तजुर्बात को याद करते हुए अवाम ने किया नए साल 2026 का इस्तकबाल। जमकर सजी मै नोशी और रक्स व मौसीकी की महफिलें। मगर नया साल आते ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसने पुलिस मुलाजिमीन को गुजारनी पड़ी सड़कों पर सर्द रात। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।